الرحيم ألا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه معززین حضرات، برادران اسلام، آپ کے اس مبارک ادارے میں ایک علمی بڑا اجتماع ہے قدیم مدرسہ کی طرف سے۔ آپ حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ہے اور آپ نے تشریف فرمائی ہے۔ یہ بزرگان دین کی خدمت کا اثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ ایک علمی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم انسان کی امتیازی وصف ہے۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شان عطا فرمائی، جس سے اس کو امتیاز حاصل ہے، وہ علم ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے، آپ غور کریں گے، قرآن شریف میں دیکھیں گے تو انسانیت کا موضوع علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، ہر جنس کا علم اس کو عطا فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، اس نے عنایت کی ہے بڑی۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ قرآن کی تعلیم امانت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن کے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکام تھے مخلوق کے لیے۔ فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں کو اور زمین پر اور جبلوں کو۔ تین مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ان میں اپنی اپنی عظمت تھی۔ آسمان میں بلندی ہے اور بہت بڑی مخلوق کا حامل ہے، اس میں روحانی مخلوق بھی ہے اور اجرامی مخلوق بھی ہے، اس میں اجرام بھی ہیں، ارواح بھی ہیں، ستارے ہیں، سورج، چاند، ملکوت، ہر عظیم تک بڑی آبادی ہے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کیا، اپنی امانت پیش کی، اور زمین کو بھی کہا۔ زمین بھی بڑے خزانے کی مالک ہے،
آج تک زمین کے خزانے ختم نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے زمین کو، اس کو بھی عطا فرمایا، عنایت کیا، پیشکش کیا کہ تم امانت قبول کرو۔ اور جبل جو زمین میں کھڑے تھے بڑے قرفر کے ساتھ، بڑی بلندی کے ساتھ زمین پر قرار پائے ہوئے ہیں، ان کو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی امانت کو برداشت کرو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بات تھی، ایک امانت تھی، اللہ کی بات۔ انہوں نے سب نے انکار کیا، ہم میں یہ قوت نہیں کہ ہم اس امانت کو نبھا سکیں۔ وہ کیا امانت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، حق معرفت کا، حق معرفت کا۔ ویسے تو سب کو معرفت ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر شے اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتی ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے۔ معرفت تو ہے، حق معرفت کا، جو معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہے، اس کی طلب تھی اور وہ امانت تھی۔ اور دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی۔ ایک طرف اللہ کی معرفت یا عبادت سمجھ لی، عبادت، اور دوسرے طرف تھی حقوق کی شناخت اور عدالت۔ اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی، ایک تھی اللہ کی عبادت اور دوسری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مخلوق میں عدالت۔ آسمانوں کو پیش کیا، زمین کو کہا، جبلوں کو بتلایا کہ تم یہ میری امانت نبھاؤ، مگر انہوں نے انکار کیا، کہا ہمارے اندر سخت نہیں کہ ہم آپ کی حق عبادت کو ادا کریں اور آپ کی دی ہوئی عدالت کو مخلوق میں ہم پھیلائیں، جاری کریں، ہمارے اندر یہ نہیں۔ ڈر گئے۔ حمل الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اٹھانے کی علت بتلائی ہے یہاں۔ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ظلم اور جہول تھے۔ تفاسیر نے انہ کان ظلوما جہولا کو تعلیلی جمرادی قرار دیا ہے، یہ تعلیلی جملہ ہے، علت کیوں اٹھایا؟ ظلم اور جہول تھا۔ کیسے ظلم اور جہول؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنی چاہیے اور پیدا کی، جب تو اس کی امانت کے نبھانے کے لیے کوئی نہیں ملا۔ ملکوت نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کچھ کریں گے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کریں گے، ہم تقدیس پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ملکوت نے کہا کہ انسان کو پیدا مت کیا جائے، ہم سب کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کی معنی ہے دو۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس راز کو جو میں انسان کو پیدا کرتا ہوں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے تو کہا ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا، صفاقی کرے گا، ہم تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، عبودیت کے حق ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کو پتہ نہیں۔
یہ تو عام معنی ہے. دوسری بھی ایک معنی ہے، مگر وہ بعد میں دیر سے ظاہر ہوئی، پہلے نہیں ظاہر ہوتی تھی. 1.25 لاکھ انبیاء کا گزرا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا، تقریباً یہ بات ہے. جب آپ نے تشریف لائی تو معراج میں اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ان کو، اور معراج کی انتہا تھی مخلوقات کے وجود کی آخری حد پر عروج ایک مقدس شخصیت کا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم کی سطح پر لے گئے اور ساری کائنات قدموں میں آ گئی. ماسوا جو وجود کا دائرہ تھا ایک عظیم شخصیت کے قدموں کے تحت رکھا گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حد تک پہنچنے کے بعد بھی ابدیت کا حق آپ پر لگتا ہے. فرمایا مجدنی عبدی، اے میرے بندے تم میری تمجید کرو، تعریف کرو. آپ نے جو تعریف کی وہ تعریف آپ سنیں. فرمایا عرض کیا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے اللہ میں وہ تعریف تو نہیں کر سکتا جو آپ نے اپنے ذات کی تعریف کی ہے، میں وہ تو نہیں کر سکتا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وہ تعریف جو تو نے کی ہے میں تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجدتنی عبدی، اے میرے بندے آپ نے تو تعریف کر دی، کر چکے. یہی بات تھی. اجز عن الحمد حمد، اللہ کی تعریف سے عاجزی یہ ہے معرفت کی انتہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تعریف فرمایا کہ ہے. ملکوت نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کریں گے، ہم تحلیل کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے. مگر آج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قدم سائر وجود کے اوپر ہیں اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ پہنچا کر ان سے فرماتے ہیں کہ میری تعریف کریں، تو اتنے مقام اور اتنی عظیم مرتبت کے بعد بھی فرماتے ہیں اور اللہ کی تعریف میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تو وہ تعریف نہیں کر سکتا جو تو نے اپنے ذات اور صفات میں ازل میں ابد میں دہر میں سرمد میں تو نے تعریف کی، میں تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تعریف نہیں کر دی. انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ تعریف تم نہیں جانتے ہو. وہ تعریف یہ ہے کہ کوئی ہو جو بتائے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ تھی حق عبادت. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت اور عدالت کی پیدا کیا. عدالت کے استاد تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اور عدالت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علم البیان، اس کو بیان بھی بتلایا، سکھایا قرآن مجید تاکہ وہ پڑھ لے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ، بھائی صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے، وصف ہوتی ہے واصف کے ساتھ. تو وصف کرنے والے نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے وصف کی، اور قرآن مجید وصف کی صورت میں. صفت تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کا انتقال تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کوئی واصف ہو. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے واصف بنایا، قرآن مجید کا پڑھنے والا قرار دیا. فرمایا علم البیان، اس کو بیان بھی سکھایا. تو قرآن مجید پڑھنے لگے. تو وہاں آتا ہے کہ فحمل الانسان، انسان نے اس عظمت کو اٹھایا جو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، امانت کی. کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق دو قسم کی پیدا کی تھی. ایک تھی روحانی مخلوق، ملکوت، ان کی غذا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے،
रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला का जिक्र है। अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा कर उसकी बका का बंदोबस्त किया है। मलकूत का बंदोबस्त, बका का बंदोबस्त अल्लाह के नाम से है। अल्लाह ताला है मुस्तजमिल जमी सिफातुल कमलिया। मलकूत की ग़िज़ा बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की तमामी जितने सिफात हैं एक इस्म ज़ात से वाबस्ता है, और जितने सिफात के तासीरात हैं वो तासीरात जितने हैं वो तासीरात अपने मुअस्सिर के साथ वाबस्ता होते हैं, और मुअस्सिर है अल्लाह ताला की सिफात, और सिफात अल्लाह ताला के इस्म के साथ वाबस्ता हैं। जो अल्लाह का नाम लेता है अल्लाह ताला के तमामी सिफात का असर लेता है और सारी तासीरात से मुंतफा होता है। मलकूत की इतनी बड़ी ग़िज़ा है कि किसी चीज की इतनी ग़िज़ा नहीं, और उस ग़िज़ा की कुव्वत यह है कि उनको दवाम मिल गया। ये मलकूत की मखलूक जन्नत में है। एक ऐसी दूसरी मखलूक भी अल्लाह ताला को पैदा करनी थी जिसको दवाम हासिल हो, ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को ऐसी मखलूक पर हमेशा के लिए पालूट करता रहे, और अल्लाह ताला का खजाना फैज हमेशा मखलूक पर जारी रहे। ये था मामला। फिर मलकूत की जो खालिस रूहानियत थी वो और किसी चीज को कबूल नहीं करती थी सिवाय नाले अल्लाह के, सिवाय नाम अल्लाह के कुछ कबूल नहीं करती थी। कोई गर्ज नहीं है अल्लाह का नाम, तो उसमें सब कुछ मिल जाता है उनको। दूसरी मखलूक थी मादियात की, अरब अनासिर की। तो उनसे जितनी मखलूक थी उनको तो खाना पीना था, अपनी हैवानियत थी। तो एक थी मलकियत, दूसरी थी हैवानियत। हैवानियत ने भी इनकार किया, मलकियत ने भी इनकार किया, आसमानों ने भी इनकार किया, जमीन ने भी इनकार किया, जबलों ने भी इनकार किया। जो कुव्वत थी, जो शिद्दत थी, जो सब कुछ था, जो मादा था, जोहर था, किसी ने अल्लाह तबारक व तआला की अमानत को बर्दाश्त नहीं किया। इंसान ने उठाया। क्यों? उसमें दो सबब थे, एक जुल्म, दूसरा जहल। अब इसकी साख्त देखें। अल्लाह ताला ने रूहानियत को, जो रूहानियत थी मलकूत में, उसको ले लिया, और हैवानियत को हैवानात से ले लिया। ये जितने मसादर हैं इनको जौहरी वजूद है अल्लाह ताला के पास, जितने मसादर हैं तो इनको जौहरी वजूद था। रूहानियत को भी जौहरी वजूद है और हैवानियत को भी जौहरी वजूद है। जिस तरह इश्तराक कुल्ली को अपने अफराद पर होता है, इस तरह इन दो कुल्लियों का भी अपने अफराद पर इश्तराक पर इस्तेमाल है। तो अब उस हैवानियत को कहा कि तुम अपनी परवरिश के लिए सब कुछ खाते हो, हलाल हराम तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक तरबियत रखी थी, वो है उनका हुक्म। शेर को आप घास खिलाएंगे नहीं खाएगा, और गाय को, बकरी को आप गोश्त खिलाएंगे नहीं खाएंगे। ये इनकी तबीयत शरीयत है। हलाल हराम इनका ये है, बाकी हलाल हराम की कोई बात नहीं, सारे ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, जो हैवानियत थी, जो इन तमामियों पर साबित आती है, उस हैवानियत को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको हराम छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे कानून में हराम होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो सारी बात कबूल करते हैं, तौन व करहन इलैहि युरजऊन, अल्लाह की तरफ राय दें। उसने कहा ठीक है। एक हैवानियत है जिसने कहा कि ठीक है, मैं हराम को छोड़ देती हूं जिसको आप हराम कहते हो। एक हैवानियत जो हर चीज खाती थी, उससे हराम का शोबा अल्लाह ताला ने छुड़ाया, तो नुकसान आ गया ना उसमें। जबकि एक शख्स की बकरी अपना भी घास खाए, दूसरे का भी घास खाए, पेट पालती, मोटी ताजी होती रहे, अब उसको एक कील में बांध कर आप सिर्फ अपने घर का घास खिलाएं और वो पूरा सूरा खिलाएं तो आखिर तंग होगी ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हैवानियत को कि तुझसे मैं हराम को अलग करता हूं। कहा ठीक है, तो मत करूंगा, अल्लाह ताला के सामने फरमा रहा है। और फिर मलकूत को कहा कि मलकूत तुमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी कायनात में सिर्फ मेरा नाम ही तेरी ग़िज़ा है, मगर आपको दूसरी ग़िज़ा भी मैं ऐसा करता हूं, वो कबूल करनी पड़ेगी।
मलकूत, मलकियत को कहा। मलकियत ने कहा कि आपका हुक्म। फिर मलकियत को हलाल कबूल कराया, हैवानियत से हराम को तर्क कराया। अब वो मलकियत जो हलाल को कबूल करने वाली है, वो हैवानियत जो हराम को छोड़ने वाली है, इन दोनों को जो मिलाया तो हजरत इंसान पैदा हो गया। इंसान एक मलक है मगर हलाल कबूल करने वाला, और इंसान एक जानवर हैवान है मगर हराम छोड़ने वाला। अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, इस इंसान को पैदा किया, कुरान मजीद के लिए इसको मंजिलगाह बनाया, ताकि ऐसा इंसान हो जिसके अंदर एक दफा भी हराम ना आया हुआ हो और उसने हलाल को कबूल किया। तो फरमाते हैं कुरान मजीद के लिए स्टेज कौन था? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल इंसान, इस इंसान को पैदा किया। वो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने वहां खड़े होकर वो फरमाया था ला हुसी सनान अलैका अंत कमा सनैता अला नफ्सिक। तो एक ऐसी शख्सियत पैदा की जो सारी जिन्स का गोया शाहिद था। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर शाहिद है, तुम सारे उम्मतों के शुहदा हो, रसूल तुम्हारा शाहिद है। इस हलाल के कबूल करने में, हराम के छोड़ने में। तो भाई हराम के छोड़ने से नुकसान आ गया ना, नुक्स जुल्म को कहा जाता है। इन्नहु कान ज़लूमन, इंसान ज़लूम था जो नुक्स उसमें आ गया, जहूला। तो वो मलकियत जिसने अल्लाह ताला के नाम के साथ साथ एक हलाल को कबूल किया तो उसमें मसरूफियत बढ़ गई। मसरूफियत का बढ़ जाना ये जहालत का एक शुबा है। तो वो शख्स जो इंसान था उसमें जहालत आ गई। इसलिए अल्लाह ताला वहां फरमाते हैं ववजदक ज़ाल्लन फहदा, उसको उस कमी को कबूल अल्लाह ताला ने उसको भर दिया। कमी भी पूरी हो गई, कमी पूरी हो गई मार्फत से, ये राही मार्फत कुरान मजीद की। और जो उसमें नुक्स आ गया था वो नुक्स अल्लाह ताला ने अदालत से पूरा कर दिया। इंसान के दो ज़र्फ हो गए, एक जुल्म का ज़र्फ, एक जहल का ज़र्फ। जुल्म का जो ज़र्फ था वो नुक्स को भरने वाला था, और जहल का जो ज़र्फ था वो कुछ चीज को ज्यादा तलब करने वाला था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको जो दो ज़र्फ दिए, उन दो ज़र्फों की तकाजा ये थी कि इसमें कुछ भरा जाए, एक जुल्म का, एक जहल का। जुल्म को अदालत से आप बदलाएंगे फिर उसको आदिल कहा जाएगा, जहल को आप इल्म से बदलाएंगे फिर उसको आलिम कहा जाएगा। दो बोतल ले लें, एक में आप एक चीज लेने वाले हैं, दूसरी में दूसरी, एक बोतल है आपके साथ और एक मगा है आपके साथ। आप ले जा रहे हैं तो पूछता है भाई क्या है? नहीं, बोतल भी है मगा भी है। वहां से जब वापस आ रहे हैं तो मगे में आपने दूध दिया है और बोतल में आपने दवाई दी है। भाई क्या है? सब दवा है और दूध है। अब बोतल का नाम नहीं बतलाएंगे आप, पहले आप बताते कि बोतल है और मगा है मेरे साथ। अब जब वापस चीजें लाकर भरकर उनको ले आ रहे हैं, आपसे कोई पूछता है क्या उठा है? साफ दवाई है, दूध है, बोतल का नाम नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को दो ज़र्फ दिए थे, एक जहल का और दूसरा जुल्म का। फिर अमानत को जो पेश किया तो उसमें अदल भी आ गया और इल्म भी आ गया, बस ये आलिम और आदिल बन गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इसलिए इसने कबूल किया अमानत को। अब इंसान का क्या मनसब हुआ? एक तरफ अल्लाह की मार्फत और दूसरे तरफ इंसान बात खुसूसी तौर पर आम मखलूक के साथ अदालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिड़ियाएं भी अदालत लेने को आती थी। अभी फिर में आता है एक सहाबी आया, उसको छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया के, तो ले आया और चिड़िया ऊपर से मुंडलाती आती थी, आकर बैठ गया। आपने फरमाया ये तो चहचहाती है और शिकायत करती है, क्या है? तो साहब ने बच्चे निकाले, साहब बच्चे तो उनका गिर पड़ी। फरमा देखो कितनी इसको है, आपने क्यों उठाए? कहा अपने बच्चों के खिलाने के लिए इसके बच्चे उठाए, ऐसा भी क्यों होता है? जाओ वहां उसके रखा, घोंसले में छोड़ के आओ। तो जब वो साहब लेकर चला जाता है तो वो उसके ऊपर सर मंडलाती और अजीब खुश आवाज करती, खुशी में चली जाती है। सरकार नबूवत के सामने से उसको अदालत मिली। मालूम हुआ कि अदालत इतनी वसी है कि न सिर्फ इंसान बल्कि हैवानात, परिंदे चरिंदे सबके साथ अदालत, ये इंसान का फरीदा है।
अब इंसान के लिए क्या मनसब रहा? एक इबादत, मार्फत, और दूसरी जगह इबादत का शाहकार आम और बगैर माफी के सिर्फ सजदा है। सजदा बहुत बड़ी बात है। ये हमारा जो जिस्म है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई जागीर है, अल्लाह का इनाम है। भाई इस पर हमको खराज अदा करनी है, बाजगुजारी हमारी पर है। वो बाजगुजारी क्या? कि हम अपने इस सर को, जिसमें इतनी कीमती चीजें अल्लाह ताला ने सामने झुकानी है, और झुकाकर उसमें उस मार्फत का जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वो मार्फत की थी, ला उसी सनाम अलैका अंत कमा सुने तला नज़ुक, वो तारीफ करनी है कि सुभान रब्बियल आला, अल्लाह आप हर चीज से बड़े हैं, हम तो पहुंच नहीं सकते, हर चीज से बड़े हैं। वहां वो मेराज हुआ, यहाँ ये मेराज होता है। सजदे की इंतहा है सुभान रब्बियल आला, सजदे की इब्तिदा है जमीन पर सर रखना। ये अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि इसके सिवा अल्लाह ताला किसी को मानता नहीं, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे मलक मुकर्रब हो, कौन कोई भी हो। फरमाते हैं अतत समाओ हक तय, मैं मेराज की रात गया, आसमान चीकट करता था, और हक है उसका तो वो चीखे, आवाजें करे, चिचिलाए। मामिन शिबिरन इल्ला व अलैहि मलकुन साजिद, फरमाया एक बालिश्त का कदर खाली नहीं आसमान में, हर एक आसमान की जरी जरी पर मलक सज गया। तो सजदा अल्लाह ताला को इतना पसंद है, मलकूत फारिग नहीं, नासूक फारिग नहीं, हर चीज सजदे से फारिग नहीं। हालांकि अल्लाह ताला शजर भी सज्जा करते हैं और पत्थर भी सज्जी करते हैं, हर चीज अल्लाह ताला को सज्जा करके सारे अल्लाह के सामने देते हैं। तो सज्जा करना ये इंसानियत का शाहकार है और फर्ज है, ये जरूर अदा करना है। इंसान कितना भी खिदमत गुजार हो, उसका उस बीवी जैसा मिसाल है, एक वफादार बीवी, पड़ोस की खिदमत करने वाली, यतीम पर रहम करने वाली, फकीरों को रोटी खिलाने वाली, मेहमानों की खिदमत करने वाली एक शोहर की बीवी, एक बड़ी जबरदस्त वफादार, वफाशियार, परहेजगार, नेक पाक औरत। एक ऐसा आदमी फर्ज करे, एक ऐसा हाकिम फर्ज करे जो इतना वफाशियार हो, मगर वो औरत जिस मर्द की बीवी है, जब शोहर उसको बुलाता है तो नहीं जाती। अब आप इसको शरीफ कहेंगे, फरमाबरदार कहेंगे, सिर्फ क्यों कि बीवी का लक़ब उसको जो लगा है, उसने इस पर ये फर्ज करार दिया कि शोहर जो बुलाए तो जाए। ठीक है कि नहीं? अब आप इसको शरीफ कहेंगे, खिदमत गुजार, वफाशार, फलान फलान जितने अल्काब नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो शोहर को फरमान है। इस तरह एक शख्स कितनी भी इंसानदार की खिदमत करे, कितनी भी उनकी परवरिश करे, गरीबों की हमदर्दी करे, मगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं करता, उस बेफरमान बीवी जैसा है जो शोहर के सामने। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक औरत है जो अपने मुर्श के बुलावे पर तो आती है और खिदमत भी करती है, सब कुछ करती है, मगर वो हक खुसूसी सारे हक को आप इसके थ्रो करें, छोड़ देंगे और आजाद कर देंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, खिदमत करे जो कुछ करे ठीक है, मगर वो जो शोहर का हक है, उस शोहर के हक में किसी दूसरे के साथ भी हाथ मिलाती है। आप इसको क्या शरीफ कहेंगे? जिस तरह आप उसको फरमाबरदार नहीं कहते थे, आप इसको शरीफ नहीं कहेंगे। इस तरह जो शख्स अल्लाह की मखलूक में अल्लाह को सजदा नहीं करता, वो ऐसी कमीनी औरत जैसा शख्स है जो खुदा को सजदा नहीं करता। और वो जो सजदा अल्लाह को है करना, किसी दूसरे के साथ अगर कर दे तो आप क्या समझते हैं? एक तो अल्लाह को सजदा ही नहीं करता, वो तो उस बेवकूफ औरत जैसा है, बेफरमान औरत जैसा है, मगर सजदा तो अल्लाह को करता है, मगर किसी दूसरे को भी सजदा करता है, पत्थर को सजदा करता है, हजर को सजदा करता है, कागज को और झंडे को, ताबूत को, सबको सजदा करता है, और कब्र को भी सजदा करता है, मगर अल्लाह को भी सजदा करता है। सोम सलात का भी पाबंद है, जिक्र तस्वीर भी करता है और मस्जिद के अंदर इशारा भी करता है, मगर
खल्क खुदा की खिदमतें देखेंगे, मगर अब इस मेयार के बाद आपको गद्दार ही गद्दार नजर आएंगे। कैसे भी हों, जब इस मेयार पर नहीं आते। आप समझे कि नहीं? तो इतना बड़ा एक बोझ और वजन हमारी इंसानियत पर पड़ा हुआ है। एक है अल्लाह ताला की मार्फत, खालिस मार्फत, जिसमें शायद आप कुछ भी जरा ना हो। सुभान रब्बिल आला। अब जिस किसी के तरफ जाएंगे वो आला नहीं होगा। आला भाई वही है जो हर चीज से बुलंद है। आप उसके मुकाबले में जब कोई ले आएंगे ना तो आला नहीं रहा ना। दो तो आला नहीं होते, आला तो एक होता है ना। किसी भी चीज में, किसी भी तलब में, किसी भी शान में, किसी भी हाल में अगर आला के बराबर तुमने कुछ कर दिया तो फिर तो नुकसान हो गया। तो आप लोग कहते हैं कि शिर्क यही है कि भाई कब्रों को सजदा मत करो, मिन्नतें मत करो, कूड़े मत दो, ये कर फला। ठीक है, इसमें शक नहीं, वो तो आ गया, मैंने कहा। और दूसरा ये भी तो है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस मखलूक पर मेरा हुक्म चलाएं। अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, खुदा की खालिकियत है, खुदा की आमरियत है। खालिकियत में शिर्क नहीं, आमरियत में शिर्क नहीं, आमिर अल्लाह है, हुक्म उसका होगा। मखलूक खुदा की, हुक्म गैर का। एक शख्स मुझे इतना अच्छा आदमी समझ में नहीं आता जो कोई अपने बीवी पर खर्चा, मसारिफ, कपड़े वगैरह दूसरे को खर्च करते देख कर खुश हो। है कोई ऐसा आदमी? कोई पड़ोसी उसकी बीवी को कपड़ा भी दे दे और कपड़े उसके जिस्म पर सिलवा कर उसको पहना कर वो खुश हो जाए कि बाबा आपकी बीवी कैसी अजीब बन गई है इस ड्रेस से। है कोई ऐसा आदमी? हाँ, कोई नवाला लेकर उसको कहे तुम ये खाओ, नहीं, मगर नवाला लेकर उसके मुंह में डाले, जबकि ये इबादत है। हत्ता तज़ा लुक़मतन फी इमरातिक, एक गैरत की बात है। तो मैं समझता हूं कोई नहीं करता। तो आप अगर किसी ऐसे शख्स के पड़ोसी की शफकात से आप बिल्कुल ज़ेरे गिरा हो गए हैं, मगर मैं समझता हूं कि इससे कोई ज्यादा बेगैरत नहीं जो पड़ोसी के खिदमात से, जो इसकी बीवी के सिले में हैं, वो बर्दाश्त करे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर किसी दूसरे के सिलात कैसे बर्दाश्त करेगा जब खुद देने वाला है और कोई देने वाला नहीं है। देने वाले का आप नहीं बर्दाश्त करते, जो कोई खुदा के सिवा देने वाला नहीं उसका अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करेगा? झूठे का क्या बर्दाश्त करेगा? तुम्हारी झूठ कैसे तस्लीम करेगा? तो अल्लाह ताला का कानून नहीं चलता किसी के घर पर, किसी के शहर पर, किसी के मुल्क पर, किसी के सूबे पर। अल्लाह ताला के सिवा किसी का कानून, क्योंकि खालिकियत खुदा की है, आमरियत उसकी है, अम्र अल्लाह का चलेगा, कानून किसी दूसरे का नहीं चलेगा। अगर किसी ने इस कानून में रवादारी रखी है तो वो ऐसे मुशरिक से भी ज्यादा बदतर है जो एक कब्र को सजदा करता है, क्योंकि वो तो अपने मजबूरी हालात से सजदा करता है ना। वो सजदा करता है इस लिहाज से कि भाई कब्र को सजदा करूं, बेटा नहीं पैदा होता, बीमार अच्छा नहीं होता, मुकदमे में सफाई नहीं आती, कुछ गरीब हो गया हूं, ये वो इधर उधर जातियात हैं, खुदा जाने वो हो न हो, इसके पीछे में नहीं हूं। मैं सिर्फ इस बात को बताता हूं कि ये एक जाती आदमी है, जातियात के पीछे है। मगर एक आदमी अल्लाह के इस खल्क पर, अल्लाह के मुल्क में नबी के इस कानून के साथ दूसरे कानून का नाम लेवे, इस मखलूक पर अल्लाह के कानून को छोड़कर किसी दूसरे का कानून जारी कर, बदतरीन मुशरिक है। क्योंकि इसमें क्या जाती गर्ज है, जबकि पूरी मखलूक को तबाह कर लेता है, गैर के कानून के सामने सबको झुकाता है। जब वो खुद झुकता है कब्र के सामने, ये पूरे मुल्क को झुकाता है, अमेरिका, इंग्लैंड के सामने। मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी बुलंद चीजें हमको सिखाई। अल्लाह ताला हमको और आपको ज्यादा तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़े, आप बलूचिस्तान वाले नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, दुआ करें सिंध वाले भी नमाज पढ़ेंगे। पंजाब में भी नमाज है कुछ, मगर इतनी ज्यादा नहीं है, जाहिल जिले भी हैं पंजाब के बहुत। नमाज की बात बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे और अदालत में भी आप साथ हो जाएंगे। अगर अदालत में साथ हो जाएंगे ना, होंगे अल्लाह के साए के नीचे खड़े हो जाएंगे। आदमी भी अल्लाह के साए के नीचे होगा। अदालत वालों के साथ तुम साथ हो जाओ तो अल्लाह ताला आपको मेहरबानी कराए, हमको भी मेहरबानी कराए। बातें बहुत है, ज्यादा करना मैं नहीं चाहता। आखिर